Hello students, till now we have learned how to find out the area of circle, the area of semicircle, quadrant, and then the area of sector and also the area of segment. Now we'll apply this knowledge to find out the area of the combination of plane figures. When I use the word combination of plane figure, this is an example of combination of plane figures where you can see a square as well as you can see a segment on two sides, segment AB, D let's say, and segment DEC. तो अब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया प्लेन फिगर्स का, जिसका आप अपनी जो नॉलेज है सेगमेंट और सेक्टर की वो यूज़ करोगे इनमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब इसी के बेसिस पर आपके ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं जिनको आप ट्राई करना। आपकी जो भी क्वेरी हो इन एग्जांपल्स में आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। लेट्स कम टू एक्सरसाइज नाउ। आपको यहाँ पर गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the area of the shaded region in figure 12.19 if PQ equal to 24 centimeter, PR equal to 7 centimeter, O is the center of the circle. Now in this question angle P will be equal to 90 degree. Why? Because it is an angle in a semicircle. In the construction chapter I told you about the angles in the semicircle, and angle P will be equal to 90 degree. So then triangle PQR will be a right angle triangle, RQ is the diameter, RP is the base, angle P equal to 90 degree, and PQ will be the perpendicular. So you can use Pythagoras theorem and write RQ square is equal to RP square plus PQ square. So after this, on putting the value of RP and PQ, you can find the value of RQ, which will be equal to 25 centimeters. So now you have the diameter of the circle. So radius will be 25 upon 2. And to find out the area of the shaded region, what you will do, you will subtract the area of semicircle minus the area of triangle. For the semicircle, you will write half pi r square. R you have 25 upon 2, and for the area of triangle, you will have half into base into height. That will be equal to half into RP is given to you, PR equal to 7, and PQ you are also provided 24. So with this you will have the area of triangle as well. So when you will subtract the area of semicircle, subtract the area of triangle from the area of semicircle, you will find out the area of the shaded region, which will be equal to 161.54 centimeters square. Now let's come to second question. You have to find out the area of shaded region, figure 12.20. If the radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively. Concentric circles are those which have a common center. Now to find out the area of shaded region ABCD in this figure, what you have to do, you have to subtract the area of sector of inner circle from the area of sector of outer circle. That means area OACO minus area OBDO. OACO is the sector formed by the outer circle, so area will be 40 upon 360 into 22 upon 7 into radius is 14. And for the area of OBDO, you will write 40 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. Now you can take this 40 upon 360 into 22 upon 7 common from both the terms, and you will have 14 square minus 7 square in the bracket. After solving this, you will find out the area of shaded region, and it will be equal to 51.33 centimeters square. Let's come to third question. The third question is find the area of shaded region in 12.21 in which ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles. सी अब इसमें जो दो सेमी सर्कल है APD और BPC, दीज आर आइडेंटिकल सेमी सर्कल. सो आप या तो स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को जब आप ऐड करोगे तो एक कंप्लीट सर्कल का एरिया बनेगा. तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो यानी कि 14 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. इससे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा शेडेड रीजन का. दैट विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 14 का स्क्वायर जो आपका स्क्वायर का एरिया आएगा वो आएगा 196, और जब आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपके पास रेडियस क्या होगा 14 का हाफ यानी कि 7. तो आपके पास इसका आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय
7, 22/7 इंटू 7 करने पर एक 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 7 बचेगा आपका एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल या फिर एरिया ऑफ 1 सर्कल आप कंप्लीट कह सकते हो। तो आपके पास आएगा 196 माइनस 154 विच विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ fourth question, find the area of the shaded region, figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सर्कल का एरिया चाहिए और ट्राइंगल का भी एरिया। अब लेकिन जो ये वाला सेक्टर का एरिया है वो सर्कल के एरिया में भी आ रहा है, वो ट्राइंगल के एरिया में भी आ रहा है, तो ये तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यानी कि हमें ये एरिया एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए सर्कल के एरिया में हम ऐड कर देंगे ट्राइंगल का एरिया और सबट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर का एरिया जो कि 2 बार काउंट हो रहा है, सर्कल में भी काउंट हो रहा है और ट्राइंगल में भी काउंट हो रहा है। सर्कल का एरिया निकालना तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर, आपको बताया भी गया रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल के केस में आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर ईच का, तो एरिया क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर। ये तो हो गया आपका ट्राइंगल का। सर्कल का क्या यूज़ होगा, पाई आर स्क्वायर जिसमें आर है 6। और सेक्टर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल AOB क्या होगा 60 डिग्री और सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप ये पाई आर स्क्वायर 2 बार अलग अलग कैलकुलेट करो, चाहे पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके 60/360 विल बी इक्वल टू 1/6, यानी कि आप क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/6 और इस एरिया में आप क्या ऐड कर दोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या थी आपकी एक ट्राइंगल की, साइड थी आपकी 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर पे। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को तो आपके पास आंसर आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let's come to next question. From each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of circle of radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. Remaining portion का निकालना है, तो यानी कि स्क्वायर के एरिया में से मैं 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दूंगी और एक सर्कल का एरिया में माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये चारों क्वाड्रेंट टुगेदर विल मेक अ सर्कल, तो यानी कि आप इस स्क्वायर की एरिया में से 2 सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो क्वाड्रेंट भी रेडियस 1 सेंटीमीटर के हैं और सर्कल का डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, तो कैसे आएगा एरिया शेडेड रीजन का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का आप निकालते तो क्या करते 90/360 करते पाई आर स्क्वायर में और 4 क्वाड्रेंट्स के लिए इंटू 4 करते, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, आपके पास पाई आर स्क्वायर ही तो बचता और सेंटर में जो सर्कल है उसके लिए भी क्या है पाई आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही होएगा, तो आपका तो क्या आ जाएगा आपका ये 16 minus 44/7. So your answer for this question will be equal to 68/7 centimeter square. The answer of previous question will be in square root. जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो 68/7 नहीं होगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 36√3 + 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू 6th क्वेश्चन। द 6th क्वेश्चन स्टेट्स इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अब देखो आपको बोला क्या गया है कि एक सर्कल है उसमें एक ट्राइंगल है अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर यहाँ पर पूरे में डिज़ाइन बनाया हुआ है, आपको इसी का एरिया फाइंड आउट करना है पूरा। अच्छा देखो इसका सर्कल का सेंटर लेट से O है, तो अगर आप A पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करो जो O से पास करे, मीडियन मतलब BD इक्वल टू क्या होगा DC, BD इक्वल टू DC होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास गिवन है AO और आपको DO दे रखा है, तो अब देखो AD मीडियन है तो AO क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ AD,
थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए हो गया था रेडियस, रेडियस आपका किसकी इक्वल है 32 के, तो 32 इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी। यहाँ से आपका ए डी कितना आ जाएगा, ए डी की लेंथ आ जाएगी आपकी 48, ए डी की लेंथ आ गई आपकी 48। अब ट्राइंगल ए डी बी में अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अच्छा, अब आप क्या लिख सकते हो, आपने लिखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये लिखा। ए बी स्क्वायर की जगह तो आपने ए बी स्क्वायर ही लिखा, अभी हमें साइड की लेंथ पता ही नहीं है कितनी है। इक्वल टू ए डी की लेंथ हमने फाइंड की थी 48, तो इक्वल टू क्या हो गया 48 स्क्वायर। अच्छा, बी डी जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू द हाफ ऑफ बी सी। अब बी सी इक्वल टू ए बी है, तो आप बी डी की जगह क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब एक ही अननोन है पूरी इक्वेशन में ए बी, तो आराम से उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सॉल्व करने पर आप क्या करोगे, आप लिख दोगे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2304। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2304। जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, ए बी की लेंथ विल बी इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई ए बी की लेंथ, यानी कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड आ गई ए बी। अब अगर आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कल का एरिया तो निकालना सिंपल है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है 32, और ट्राइंगल का कैसे आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो आप ट्राइंगल का एरिया आप क्या लिखोगे, √3/4 इंटू 32√3 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू 768√3। ये आंसर आ गया आपका ट्राइंगल के एरिया का। सर्कल का एरिया आपका क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 32 इंटू 32। अब सर्कल का एरिया जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22528/7, और आप इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, 768√3, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है ट्राइंगल का एरिया। तो आंसर विल बी इक्वल टू दिस ओनली। ये आपका कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। Let's move further to 7th question. It states, in figure 12.25, ABCD is a square of side 14 cm. With centers A, B, C, D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. मतलब जो 2 रिमेनिंग सर्कल होंगे उनके एक्सटर्नल पार्ट को वो टच करेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो अब आप क्या करोगे, इसमें देखो साइड ऑफ स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर, 4 क्वाड्रेंट बनाया गया जिसमें आपकी कहाँ पे बनाया गया, आर इंक्लूडेड इन द 4 साइड ऑफ द स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट बने हुए आपके चारों साइड को यूज़ करके। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, डायमीटर दे रखा है, स्क्वायर की साइड है 14, वो होगा सर्कल का डायमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे आएगा, चाहे तो आप 90/360 कर लो, तब भी क्या आएगा 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास एरिया आ जाएगा 77/2। ये आपके पास एरिया आ गया किसका, एक क्वाड्रेंट का। और अब आपको कितने क्वाड्रेंट चाहिए, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स। तो अब आपके पास एरिया कितना आ जाएगा 4 क्वाड्रेंट्स इंक्लूड करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर में से अगर आप माइनस कर दो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, 14 स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर विल बी 196 माइनस 154 विच इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 8. Figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segments is 60 meter and they are 106 meter long. If the track is 10 meter wide, जो width दे रखी है, यानी कि ये जो width है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर की. और आपको जो डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइन के बीच का, ये कितना है, 60 मीटर का. और ये जो लेंथ है ट्रैक की वो कितनी है, ये अंदर जो लेंथ दे रखी है आपको वो कितनी है, 106 मीटर लॉन्ग. फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज. अब देखो विड्थ है 10 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है 60 मीटर, लेंथ ऑफ पैरेलल ट्रैक है, यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको बना रखा है यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ आपको एक साइड का ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये तो सर्कुलर पार्ट हो गया, और यहाँ तक जो ट्रैक की लेंथ आ रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये पूरी जो लेंथ है आपकी, ये कितने मीटर की है, 106 मीटर ईच. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, इन्हें नेमिंग दे दूँ. ये पॉइंट हो गया एच जो एक्सटर्नल पे आ रहा है, ये पॉइंट हो गया ई, फिर यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया डी, और यहाँ पर पॉइंट आ गया ए, यहाँ पे हो गया बी, अंदर वाला हो गया सी, फिर यहाँ आ गया एफ और ये आ गया जी. और यहाँ पर कहीं आपके दोनों सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है, जिसको मैंने बोल दिया एक को ओ और एक को ओ डैश. तो अब देखो डी ई जो आपकी लेंथ है वो इक्वल टू क्या है, सी एफ. डी ई इक्वल टू है सी एफ, इक्वल टू कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर सॉरी. ठीक है. उसके बाद रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो रेडियस है इनर सर्कल का ओ डी इक्वल टू क्या होगा आपका, ओ डैश सी, इसे मैंने ओ डैश का नाम दिया है, तो ये इक्वल टू हो गया ओ डैश सी. वो आपका किसके इक्वल आएगा, वो आपका इक्वल आएगा 60 का हाफ, यानी कि 30 मीटर. ठीक है. उसके बाद जो आउटर सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ डैश बी. इट विल बी इक्वल, देखो 60 मीटर वाइड था, 60 मीटर वाइड हुआ, 10 मीटर इसकी यहाँ पर विड्थ हो गई, 10 मीटर यहाँ पर, तो कितना हो गया 80, और 80 का हाफ कितना हो गया 40, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 40 मीटर. यानी कि आउटर वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 40 मीटर, इनर वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 30 मीटर. अब देखो जो लेंथ है ए बी वो इक्वल टू है सी डी, इक्वल टू है ई एफ, इक्वल टू है जी एच, और सारी लेंथ किसकी इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है 106 मीटर के. तो आपको निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज. डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक कैसे आएगा, सी डी प्लस ई एफ, ये दोनों ट्रैक, और प्लस ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल. आपको इनर साइड पे ट्रैक की लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको इस बाउंड्री का पूरा सम निकालना है. तो कैसे आएगा, सी डी प्लस ई एफ प्लस जो ये आपकी ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, इनको ऐड करके, चाहे तो आप दो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आइडेंटिकल हैं तो आप एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हो. तो आपका क्या आ जाएगा, 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर, आर कौन सा, इनर वाला आर, विच वॉज इक्वल टू 30 मीटर. तो आपका वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 30 विच विल बी इक्वल टू 1320/7. तो आप इसमें क्या ऐड कर दोगे, 1320/7. ये आपका इनर सेमी सर्कल जो है दोनों, उनका सर्कमफ्रेंस आ गया. तो आपका इनर लेंथ कितना आएगा ट्रैक का, वो आएगा टोटल में 2804/7 मीटर. ये आपका इनर ट्रैक का लेंथ आ गया पूरा. कैसे आया कि जो स्ट्रेट लाइंस थी उनको आपने ऐड करा, जो आपकी कर्व्ड लाइंस थी सेमी सर्कल का पार्ट था उनका सर्कमफ्रेंस आपने निकाल लिया. अब इसका सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ द ट्रैक. देखो एरिया कैसा आएगा, अगर मैं आउटर वाले रीजन का एरिया निकाल लूँ, उसमें से इनर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा. तो अब एरिया कैसे आएगा, दोबारा से इसको नेमिंग देते. क्या नेमिंग दी थी हमने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, ये था ए, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करी थी, ये था बी, अंदर वाला पॉइंट था सी, फिर यहाँ पर था डी, फिर ये पॉइंट था ई, ये पॉइंट था एफ, ये था जी और ये था एच.
ठीक है। अब आप क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए ट्रैक का एरिया ऑफ ए बी सी डी का एरिया निकाला आपने रेक्टेंगल का, प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच का भी एरिया निकाल लिया, प्लस आप क्या करोगे ट्वाइस एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल, बाहर वाले सेमी सर्कल का ये पूरा, मतलब ये पूरा एरिया में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इनर सेमी सर्कल का एरिया। तो आपको क्या मिल जाएगा इस ट्रैक का एरिया, उसको टू से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि दोनों साइड का आ जाए। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा, साइड थी 106 और इसकी जो विड्थ थी ट्रैक की वो थी 10 मीटर, तो 106 इंटू 10 1060 आ गया। दूसरे रेक्टेंगल का भी कितना आ जाएगा 1060, और प्लस आपको करना है ट्वाइस द एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस ट्वाइस द एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, तो यानी कि 1/2 इंटू 22/7 इंटू इसका रेडियस कितना था आउटर का 40, तो पाई आर स्क्वायर 40 इंटू 40। और अब आप इसमें से माइनस क्या कर दोगे 2 सेमी सर्कल के लिए, फिर 1/2 इंटू 22/7 पाई, और इनर का रेडियस कितना था 30 इंटू 30, ये आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपके पास सॉल्व करके देखो, अब आप इसमें से देखो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में आप 22/7 कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1060 प्लस 1060 आपके पास आ गया 2120, और आप इसमें ऐड क्या करोगे 22/7 तो आपने कॉमन निकाला, और ब्रैकेट में क्या बचा 40 इंटू 40 1600 माइनस 900, 1600 में से आप क्या माइनस कर दोगे 900, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा अंदर 700। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक, चाहे तो आपको ये ट्रैक बोला जाए चाहे ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला जाए, बात एक ही है। तो अब 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 700 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 2120 प्लस 2200, और इसको ऐड करके आपके पास आंसर आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया ट्रैक का एरिया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर 12.27, आपको फिगर दे रखी है यहाँ पे 12.27 वाली फिगर, ये ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, ए बी और सी डी आपको डायमीटर बताए गए हैं विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी डायमीटर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, and OD is the diameter of the smaller circle if OA equal to 7 cm, OA की लेंथ कितना है 7 cm, find the area of shaded region। देखो एक है बड़ा सर्कल एक है छोटा सर्कल, अगर मैं आउटर सर्कल बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल आर लूँ इट इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्योंकि OA 7 सेंटीमीटर है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना होगा 7/2 क्योंकि जो आपका बड़े सर्कल का रेडियस है वो छोटे सर्कल का डायमीटर है, तो ये इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए का अगर आप एरिया निकालते हो तो ए बी आपको पता है, ए बी कितना है डायमीटर है आउटर बड़ा वाला सर्कल का यानी कि 14 सेंटीमीटर, बी सी और ए सी आपको नहीं पता, ओ सी की लेंथ कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों 90 डिग्री पे हैं, ओ बी की लेंथ भी 7 है ओ सी की लेंथ भी 7 है, तो आप यहाँ से ए बी सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो इस ट्राइंगल का एरिया ए बी सी का कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इसका बेस कितना है 14 और इसकी हाइट कितनी है 7, तो एरिया क्या आ जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप क्या करोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 22/7, रेडियस कितना था आउटर सर्कल का 7 यानी कि 7 इंटू 7, ये हो गया आपका लार्जर सर्कल का एरिया, आपने इसमें से माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया, तो ये जो एरिया है ना आपका सेक्टर का वो आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, लार्जर सर्कल का एरिया में से अगर आप माइनस कर दोगे ट्राइंगल का एरिया और आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल प्लस द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखो
लार्जर सेमी सर्कल का एरिया लो डायरेक्ट और उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो आपको दे देगा ये वाला एरिया, और प्लस इसमें ऐड कर दो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब ये 7 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया 154 माइनस 49, ये तो आपका दे देगा ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं उनका एरिया। अब आप इसमें ऐड क्या कर दोगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा इसका एरिया। देखो क्या करना है 154 माइनस 49 करोगे तो आपका क्या आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट्स, और एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कैसे आएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, कितना आ गया ये 77/2, ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्मॉलर वाला सर्कल। ठीक है, अब आपने पहले πr² किया था तो लार्जर सर्कल का आ गया था एरिया। अब 154/2 ज़रूर कर लेना क्योंकि ये पूरे सर्कल का एरिया है 154, और आपको किसका चाहिए सेमी सर्कल का, तो /2 ज़रूर कर लेना इसे। तो आपके पास क्या आ जाएगा 77 माइनस 49 प्लस 77/2, दिस इज़ द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तरीका कुछ नहीं है, सिंपल है, सेमी सर्कल का एरिया माइनस करो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और उसमें प्लस कर दो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सेगमेंट के एरिया के लिए ट्राइंगल का एरिया माइनस करो सेमी सर्कल में से, लार्जर सेमी सर्कल में से, और ऐड कर दो स्मॉलर सर्कल का एरिया, तो ये कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई होगा। बेस है AB जो कि डायमीटर है लार्जर सर्कल का, और हाइट है OC जो कि रेडियस है लार्जर सर्कल का। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया आपको दे रखा है 17320.5 यानी कि √3/4 A² इज इक्वल टू 17320.5, ये आपका है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर a circle is drawn with radius equal to half the length of side। लेंथ ऑफ साइड का हाफ है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ O तो वो हाफ ऑफ AB है, सबके रेडियस इसके लिए इक्वल होंगे। तो अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर। देखो ट्राइंगल का एरिया हो गया, इससे आपकी A आ जाएगा, A कितना आएगा आपका साइड स्क्वायर, A² विल बी इक्वल टू 17320.5 अपॉन √3, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 4। √3 की वैल्यू क्या बोली गई आपको क्वेश्चन में लेने के लिए 1.73205। तो अब आप इसे √3 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा 10⁻⁴ इंटू 4 10⁻⁴ इंटू 4, 10⁻⁴ कैसे आया, यहाँ पर है 17320.5 और डिनोमिनेटर में है 1.732005। तो जब आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ऊपर जीरोस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और नीचे डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो आपके पास ऊपर 4 जीरोस आ जाएगी, इसलिए क्या आ गया 10⁻⁴ इंटू 4। अब A की वैल्यू क्या आएगी जब अंडर रूट करोगे तो 2 इंटू 10⁻² यानी कि 100, इसलिए इसकी साइड कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर इसकी एक साइड हो गई। अगर 200 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो रेडियस क्या होगा सर्कल का 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा 60/360 इंटू पाई की वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करनी है, इंटू 100, ये आपका आ गया एक सेक्टर का एरिया। आपके पास ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, आपके पास ऐसे सेक्टर हैं 3, तो इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया आपके 3 सेक्टर्स के एरिया। 3 सेक्टर के एरिया आ गया। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
और वैल्यूज़ जो आप लोगे पाई की और √3 की वही लोगे जो क्वेश्चन में आपको असाइंड है। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तरीका बिल्कुल सिंपल है। √3/4 a² इक्वल पुट करोगे आप एरिया के, वहाँ से आपके पास एक ही वैल्यू आएगी जो कि इक्वल टू होगी 200। एक ही वैल्यू अगर 200 है तो जो इसका रेडियस है हर सर्कल का इट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, आप यहाँ से हर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। किससे? इक्विलेटर ट्राइंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा, तो 60/360 इंटू πr² से आप हर एक सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। एक सेक्टर का एरिया आ गया, आइडेंटिकल 3 सेक्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 3, उससे आपके पास तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और जब आप ट्राइंगल के एरिया में से उन तीनों सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। Let's come to next question. Question number 11th. It states on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made as shown in figure 12.29. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. अब वो बोल रहे हैं ये जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं उनको तो हटा दो और रिमेनिंग एरिया निकालो। अब शेडेड रीजन नहीं चाहिए उन्हें रिमेनिंग एरिया चाहिए। तो कैसे आएगा? स्क्वायर के एरिया में से अगर आप माइनस कर दो 9 सर्कल का एरिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया, रिमेनिंग एरिया। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको साइड की रिक्वायरमेंट है। देखो आपको बताया गया है हैंकरचीफ पे जो सर्कुलर डिज़ाइन है उनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी कि एक सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 14। इसका भी 14 हो गया, इसका भी 14 हो गया, यानी कि ये साइड कितनी आ गई आपकी? 14 इंटू 3 यानी कि 42 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए बी भी 42 आ गई, तो यानी कि ए बी सी डी क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 42 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे? एरिया ऑफ 9 सर्कल, यानी कि 9 इंटू पाई इंटू r², 7 इंटू 7। तो यानी कि अब आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 42 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 1764। यहाँ से 7 से 7 विल गेट कैंसिल आउट, यू विल हैव 9 इंटू 22 इंटू 7, तो आपके पास क्या आएगा? वो 1386, यानी कि 1764 माइनस 1386, ये आपका आएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विच विल बी इक्वल टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके आ गया रिमेनिंग पोर्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसमें साइड्स पता होनी चाहिए। ए बी बी सी दोनों सेम आएगी कि वो किसकी इक्वल होगी? 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. In figure 12.30, OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant of OACB. OACB का आपको एरिया निकालना है। OACB आपका क्या है? क्वाड्रेंट है। एंगल कितना बता रखा है? क्वाड्रेंट है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सर्कल का आपको रेडियस बताया 3.5, OD की लेंथ कितनी है? 2। अभी आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेंट का एरिया तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्या? 90/360 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, यानी कि 3.5 इंटू 3.5। ये तो आपको डायरेक्ट क्वाड्रेंट का एरिया दे देगा। (94) 2 to 4 to 11, you will have 11 into 0.5 into 3.5 upon 2. This will be equal to 77/8 centimeter square. दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एक्चुअली में एरिया ऑफ एक तरह का सेगमेंट ही तो बना रहा है। सेगमेंट भी क्या, अगर आप सेगमेंट भी नहीं बना रहा, सेगमेंट बनाता तो ये कंप्लीट सर्कल के कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टच करती हुई आर्क होती। लेकिन अब इसमें करना क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट के एरिया में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। BOD का एरिया निकालने के लिए आपको पता है OB क्या है? रेडियस। दिस इज इक्वल टू 3.5। क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री, OD की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो BOD का एरिया कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट 2, तो 2 से 2 कैंसिलेट हो गया, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि 7/2। तो अब क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया था 77/8, ट्राइंगल का एरिया आ गया 7/2। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या मिल जाएगा, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। Let's come to next question. Question number 13. It states in figure 12.31 OABC is inscribed in a quadrant. OABC जो स्क्वायर है उसको इंस्क्राइब किया हुआ है क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि जो उसके एंड पॉइंट्स हैं वो क्वाड्रेंट के अंदर विद इन लाई कर रहे हैं। OPBQ क्वाड्रेंट का नाम है। OA इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। OA की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए और आपको क्या गिवन है, OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, OA इक्वल टू OB होगा, OA इक्वल टू AB होगा, इक्वल टू OC होगा, इक्वल टू BC होगा। ये भी 20 है, OB भी आपका कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों आया ये 20, OA आपका 20 है, AB भी 20 है। OB आप फाइंड कर सकते हो कैसे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 400, 20 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। AB भी कितना है 20 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कितना होगा 400। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, OB की लेंथ निकाल सकते हो आराम से। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितनी आएगी, √800। ये आपकी आ गई OB की लेंथ। और यही क्या है, इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस उसका। अब आपके पास रेडियस कितना आ गया √800। √800 का मतलब क्या हो गया 20√2 हो गया आपका रेडियस इस क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट का एरिया अब कैसे आएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 20√2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्कल और आपका स्क्वायर का एरिया क्या था, स्क्वायर की एक साइड आपको गिवन थी 20, तो यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी कि कुछ नहीं करना, आपको OA की लेंथ गिवन है, स्क्वायर है तो OA विल बी इक्वल टू AB। OB की लेंथ आप यहाँ निकाल सकते हो पाइथागोरस यूज़ करके। OB आपका जब आ जाएगा 20√2 तो वो रेडियस होगा। OPBQ क्वाड्रेंट का, उससे क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। OA साइड से आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। Let's come to next question. Question number 14. It states if AB and CD are respectively arcs of two concentric circle. दो concentric circle हैं, उनकी arc है AB और CD of radii 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, दोनों का सेंटर O है। concentric arcs हो गई है इसलिए सेंटर सेम है और रेडियस आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर निकालना है। OABO का जो एरिया होगा उसमें से आपको माइनस कर देना है OCD का एरिया। OCDO बल्कि सेक्टर को आपने नाम दे दिया। सेक्टर का एरिया कैसे आता है θ/360। थीटा OCDO के लिए भी 30 है, OABO के लिए भी 30 है, तो 30/360 तो आप कॉमन निकाल लो। दोनों के लिए पाई भी सेम है, यानी कि 22/7 भी कॉमन आ गया। अंदर आपका क्या बचेगा R², यानी कि ये देखो इसका डायमीटर क्या था 21, तो रेडियस क्या होगा 21/2, तो यानी कि 21/2 होल स्क्वायर माइनस आपको किसका करना है 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आउटर वाले क्वाड्रेंट का रेडियस होगा 21/2 और इनर वाले क्वाड्रेंट का रेडियस होगा 7/2। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा इसे सॉल्व करके 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। करने का तरीका यही होगा कि आप लार्जर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस जब कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ध्यान रखना इसमें जो 21 बता रखा है वो डायमीटर है, 7 भी डायमीटर है, रेडियस आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा 2 करके।
आंसर आएगा इस क्वेश्चन में 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now let's move to next question. The next question is in figure 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. BC को diameter लेके एक semicircle draw किया गया. Find the area of the shaded region. देखो एरिया आपको बोला गया ABC एक quadrant है सर्कल का जिसका रेडियस है 14. रेडियस 14 है यानी कि AB इक्वल टू होगा AC इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर. ये तो हो गया आपका रेडियस. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए BC की लेंथ. देखो BC कैसे आएगा, AB और AC आपको लेंथ गिवन है और क्वाड्रेंट बोला है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो यहाँ से BC की लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर कितना होगा 196, AB का स्क्वायर भी कितना होगा 196. 196 प्लस 196 आप करोगे तो उसका जो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में आप क्या लिखोगे 196 प्लस 196. दिस विल बी इक्वल टू BC इक्वल टू 392, अंडर रूट में आ गया 392 एंड दिस विल बी इक्वल टू 14 अंडर रूट 2. तो अब BC इक्वल टू 14 अंडर रूट 2 हो गया, यानी कि 14 अंडर रूट 2 डायमीटर है बाहर वाला जो आपका सेमी सर्कल बना है, तो उसका रेडियस क्या होगा 14 अंडर रूट 2 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 7 अंडर रूट 2. अब आप एरिया कैसे निकालोगे कि आपने लिया क्वाड्रेंट का एरिया पहले तो, ठीक है, पहले आपने लिया BC का एरिया, BC की साइड निकाली आपने. BC की साइड आने पर आप जो सेमी सर्कल ड्रॉन है उसका एरिया निकाल सकते हो. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा कैसे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो आपका आउटर वाला है, जब आप उसमें ऐड कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे इसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट. तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इस सेमी सर्कल में ट्राइंगल का एरिया ऐड करो और क्वाड्रेंट का माइनस कर दो. देखो ऐसा क्यों करा, अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि आपको सेमी सर्कल में से एक पार्ट का एरिया निकालना है जो कि इनर सर्कल का क्या था, ये इनर सर्कल का क्या था सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया. ठीक है, सेगमेंट का एरिया ऐसे आता है क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया. अब आपको उसे सेमी सर्कल में सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट था नेगेटिव साइन प्लस बनाते हैं इसलिए ये प्लस आ गया, और जो क्वाड्रेंट का एरिया प्लस था इसलिए वो माइनस आ गया. अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे, 1/4 कैसे आया 90/360, तो यानी कि 1/4 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से इट विल गेट कैंसिल आउट. तो you will have quadrant area equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC, तो कैसे निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यानी कि 1/2 बेस कितना है प्रीवियस सर्कल का आपका रेडियस यानी कि 14 और हाइट भी कितनी है 14, तो आपका ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से अगर आप इस सेगमेंट का एरिया निकालते हो तो कितना आएगा 154 माइनस 98 दैट विल बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया सेगमेंट का एरिया, जो ये सेगमेंट गिवन है ना ये वाला, इसका एरिया आ गया. अब आप क्या करो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो, तो वो क्या आएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2. ये तो हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल. 7 से 7 विल गेट कैंसिल आउट. ठीक है, तो अब आपके पास 2 से कैंसिल आउट हो गया 11, तो आपके पास क्या आया 11 इंटू 7 इंटू 2. ये भी किसके इक्वल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के. ये हो गया पूरा सेमी सर्कल का एरिया. अब 154 तो आपका सेमी सर्कल का हो गया और आपके पास वो आया था 56. तो अगर आप इसमें से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच विल बी इक्वल टू 98
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चंस थे सारे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन। जो डिजाइंड रीजन है उसका एरिया निकालना है कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट के बीच में, मतलब एक क्वाड्रेंट इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेंट इस तरीके से बना हुआ है। तो दोनों क्वाड्रेंट के बीच में जो कॉमन एरिया आपको वो कैलकुलेट करना है। एक क्वाड्रेंट आपका हो गया इस तरीके से और दूसरा क्वाड्रेंट आपका हो गया इस तरीके से। तो ये दोनों क्वाड्रेंट के बीच का जो कॉमन एरिया है वो आपका डिज़ाइन एरिया, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस दे रखा है आपको सर्कल का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो ये जो एरिया है दो बार कैलकुलेट हो रहा है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में भी कैलकुलेट हो रहा है और इस क्वाड्रेंट में भी। तो अगर आप निकालो ट्राइंगल ABC का एरिया, मतलब ABC ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसे नाम दूँ तो देखो ABC और D, और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू ट्राइंगल ADC। दोनों का एरिया इक्वल आएगा, क्या, हाफ इंटू 8 इंटू 8, बेस भी 8 है, हाइट भी 8 है, इट विल बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AE। अगर मैंने इससे नाम दे दिया E बीच के पॉइंट को, तो AECB और इससे पॉइंट को नाम दे दिया मैंने F। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AECB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AFCD। दोनों क्वाड्रेंट का एरिया भी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 90/360। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। क्वाड्रेंट का एरिया आपका कैसे आएगा, 90/360 यानी कि 1/4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर था, तो इंटू 8 इंटू 8। ये आ गया आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना, 352/7। देखो ट्राइंगल के एरिया में इतना एरिया जो एक्स्ट्रा था वो क्वाड्रेंट का था, तो मैं एक क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आधा पोर्शन का एरिया आ जाएगा, और अगर उसे ट्वाइस कर दूं तो ये दोनों हाफ ऑफ पोर्शन का एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। यानी कि आप क्या करोगे, 352/7 इसमें से आप माइनस करोगे ट्राइंगल का एरिया विच इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप इस एरिया को क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे। तो ये आपको दे देगा एरिया ऑफ डिजाइन रीजन विच विल बी इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या किया, पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उसमें से ये सेंटर लाइन ड्रॉ करके ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे एक एरिया आ गया आपके पास इतना। ऐसे ही सिमिलरली आपने दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उसमें से भी ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, तो इतना एरिया आ गया। और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आप सिर्फ एक के लिए करके उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। ये था आपका एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में सेगमेंट और सेक्टर के एरिया को यूज़ करने का। बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे यू कैन पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।